Dear parents and dear students, welcome to Erudite School of Learning Fatehnagar. Mobile number 7568077458, Class 3, Subject Science, Chapter number 3 and Lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जैसे ही स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए. Today in this chapter we will start our next topic, and the next topic is beaks and food habits of the bird. Beaks means चौच and food means खाना, habit means आदत and of bird means पक्षी के. That means in this para in today's topic we will see the different kind of food habit of the bird with the different टाइप्स ऑफ बिग. इस आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग बीक होती है और उनकी अलग अलग खाने की क्या क्या हैबिट्स है, या वो अलग अलग क्या क्या खाना, अलग अलग बर्ड्स क्या अलग अलग खाना खाती है. बर्ड्स हैव अ हार्ड बीक विद नो टीथ. दे यूज द बीक मेनली फॉर ईटिंग. Birds are also used for killing prey, 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 grooming, grooming, moving objects and feeding their young. They are of different shapes and size depending on what food the birds eat. That means as the humans and the other animals have the teeth in their mouth, but birds don't have the teeth in their beak. Their beak is very hard and strong, and all the work like the humans do with their hands, use their hands to do work, but in birds all the work is done by the beak, like eating or killing prey. Prey means the animals they eat. Prey means shikar. For grooming, grooming means to clean ourselves. Moving objects, to move the object from one place to another place. Feeding their child, that means giving the food to their child. All the different type, there are very different type of shapes of the beak in different animals, and that depend upon the what kind of food they eat. That means आज हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, अलग अलग बर्ड्स के खाने की आदतें, क्या अलग अलग वो खाना खाती है और उनकी बीक्स कैसे अलग अलग टाइप की है. बर्ड्स के पास क्या होती है, बीक होती है. जैसे ह्यूमंस के पास माउथ होता है वैसे बर्ड्स के क्या होती है, बीक, चोंच होती है. जैसे ह्यूमंस के मुंह में तीत होते हैं, बर्ड के बीक में तीत नहीं होते हैं. उनकी बीक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत होती है. उनकी जैसे हमारा मुंह क्या होता है, हम मुंह से खाना खाते हैं, हाथों से काम करते हैं, लेकिन बर्ड्स के पास क्या है, एक बीक ही है. वो माउथ के जैसे भी यूज़ करती है और हैंड के जैसे भी उसको यूज़ करती है. माउथ के जैसे कैसे यूज़ करती है, खाना खाने में, और हाथों के जैसे कैसे यूज़ करती है, जैसे उसके शिकार, छोटे छोटे एनिमल्स उनको मारने में. ग्रूमिंग मतलब खुद को साफ करने में या संवारने में. मूविंग ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, और अपने बच्चों को खाना खिलाने में. ये सारा काम वो किससे करती है, अपनी बीक से. अलग अलग बर्ड्स में क्या होती है, अलग अलग तरह की बीक्स होती है. कोई छोटी होती है, कोई लंबी होती है, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है. क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, सब अलग अलग खाना खाती है. वो जो खाना खाती है उसी के बेस पे उसकी बीक क्या होती है, अलग अलग. So the first is hard, sharp and hooked beak. Hard means strong, sharp means pointed, and hooked means bent from the front end. हार्ड का मतलब क्या होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग, मजबूत. शार्प का मतलब क्या होता है, नुकीली, तीखी. और हुक्ड का मतलब क्या होता है, आगे से मुड़ी हुई. लाइक यू हैव हुक्ड इन योर क्लोथ. जैसे इंसानों के कपड़ों में भी क्या होता है, हुक होता है. ओके, वैसे ही उसी शेप की क्या होती है, बीक. Birds of prey, birds that hunt and feed on small animals such as eagles and vulture have a strong, sharp and hooked
beaks so that they can tear into flesh of their prey. They eat small animals such as rabbits, snakes, and mice. That means this type of beak, which is hard, sharp, and hooked beaks, is present in those birds which eat the small animals, like rabbits, snakes, and mice. Mice means chuhia. So those, the name of that birds are eagle and the vulture. They eat the small animals, so they have this type of beak, which help them to tear out, to cut the part of the bodies of the animals so they can eat them. So they cut the piece of the body into the small pieces. ऐसी टाइप की बिग जो हार्ड, मजबूत, पॉइंटेड, शार्प है, तीखी, नुकीली है और आगे से मुड़ी हुई है, हुक्ड शेप की है, ऐसी बिग किसके अंदर पाई जाती है? ऐसे बर्ड्स के पास होती है जो क्या करते हैं? छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे चूहा या रैबिट, खरगोश या सांप खाते हैं। और ऐसे बर्ड्स का नाम है ईगल एंड वल्चर्स। इनकी बिग आप देखेंगे आगे से एकदम मुड़ी हुई है, पॉइंटेड मतलब तीखी है, और क्या है? बहुत ही मजबूत है। ऐसी बिग क्या हेल्प करती है? जो एनिमल्स ये खाते हैं, जिनको पकड़ के मारते हैं ये, उनकी बॉडी को छोटे छोटे पीस में, उनकी मांस को तोड़ के फाड़ के खाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज शॉर्ट, हार्ड एंड horny beaks. HORNY, horny beaks. Short means small in size, small in length. Hard means strong, and horny means which is narrow from the beginning and which is broad at the beginning and become narrow at the end. शॉर्ट का मतलब साइज, लेंथ में छोटी, हार्ड मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत, और हॉर्नी का मतलब क्या होता है? जो पीछे से तो चौड़ी है और आगे आते ही जो क्या हो जाती है? पतली। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हियर, द वाइट कलर पार्ट इज ब्रॉड एंड बिकम नैरो एट द एंड एंड विच इज स्मॉल पॉइंटेड, आगे से हल्की सी मुड़ी हुई है, पॉइंटेड एकदम तीखी नुकीली है। Seed-eating birds such as sparrow, pigeons, and have strong, short, wedge-shaped beaks. The pointed beaks help to pick and crush the seeds. That means this type of beak is present in the sparrow and the pigeon bird. Why? Because they eat the small seeds, which help, this type of beak help to pick the seeds from the place and to crush, that means to break into small pieces so they can eat. And the example of such birds having this kind of beak is sparrow and pigeon. ऐसी beak जो क्या है? शॉर्ट मतलब छोटी, लेंथ में छोटी, हार्ड मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हॉर्नी जो पीछे से चौड़ी है, आगे आके पतली हो जाती है, और हल्की सी आगे से क्या होती है? मुड़ी हुई और नुकीली होती है। ऐसी बिग किसके अंदर पाई जाती है? स्पैरो और पिजन, ऐसे बर्ड्स के अंदर पाई जाती है जो क्या खाते हैं? छोटे छोटे बीज खाते हैं, स्मॉल सीड्स जैसे दाने खाते हैं। ओके, ऐसी बिग क्या हेल्प करती है? उन सीड्स को जगह से उठाने में, पिक मतलब उठाने में, और क्रश मतलब उसको पूरा तोड़ने में या छोटे छोटे पीस करने में, ताकि वो क्या कर सके? उसे खा सके। नेक्स्ट इज लॉन्ग एंड स्लैंडर बिग्स. लॉन्ग मीन more in length and slender means thin, patli. Hummingbird and sunbirds, these are the name of the birds, have long pointed beaks that help them suck nectar, nectar from flowers like a straw. Like you drink the liquid, you just suck the liquid with the help of the straw from the bottle, etc. Similarly, birds, those birds which feed on the nectar, nectar means the sweet juice,
sweet juice which is present in the flower. Those birds which suck the nectar or juice from the flower have such this kind of beak, which is long means more in length, pointed means sharp at the end, and cylinder means thin. So they can easily put their beak into the inside the flower and suck the nectar from it. And the example of having this type of beak is hummingbirds and the sunbirds. Long and cylinder beak. Long का मतलब लंबी. You can see the picture of here. लंबी, सिलेंडर मतलब पतली. ऐसी बीक किसके पास होती है? हमिंग बर्ड और सन बर्ड. ये क्या दो बर्ड्स के नाम हैं. ऐसी बीक उन बर्ड्स के पास या उनमें पाई जाती है जो क्या करते, फ्लावर में से क्या सक करते, क्या चूसते. सक का मतलब चूसना. क्या चूसते? नेक्टर. नेक्टर क्या होता है? एक मीठा जूस होता है जो फ्लावर के अंदर पाया जाता है. ऐसे बर्ड जो फ्लावर में से ये जूस पीते हैं उनके पास क्या होती है? लंबी, पतली और आगे से एकदम नुकीली, तीखी क्या होती है? बीक होती है. जैसे आप स्ट्रॉ की मदद से बोतल में से क्या पीते हो? जूसेस या कोल्ड ड्रिंक पीते हो, वैसे ये बीक क्या करती है? फ्लावर में से ऐसी बीक की हेल्प से क्या पीती है? मीठा जूस, जिसे हम नेक्टर कहते हैं. नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग एंड CURVED curved beaks. Strong means hard in nature and curved means which is bent from the front. Parrot use their strong curved beaks to crack open hard nuts. Example of this kind of beak in which the example of this kind of beak is parrot. The parrot having the such kind of beak. That means they have strong which is hard and curved which is bent from the front. You can see the picture of your parrot which is bent from the front. They need this kind of beak because they eat the very hard nuts or very hard seed which is very difficult to open or crack. स्ट्रॉन्ग और कर्व्ड बीक. नेक्स्ट बीक हमारी स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, हार्ड. कर्व्ड मतलब आगे से मुड़ी हुई. आप पिक्चर में देख सकते हैं पैरट की बीक के आगे से एकदम मुड़ी हुई है. ऐसी बीक किसके अंदर पाई जाती है? एग्जाम्पल क्या है? पैरट्स. पैरट्स मतलब तोते. क्योंकि जो पैरट जैसे बर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ही हार्ड बीज होते हैं उनके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है. ऐसे बीज खाते हैं तो उनको कैसी चाहिए? एकदम मजबूत और आगे से नुकीली मुड़ी हुई बीक की ज़रूरत होती है. क्योंकि ऐसे हार्ड को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है, खोलना पड़ता है. और ऐसी बीक उनको मजबूत जो सीड्स होते हैं जो एकदम हार्ड होते हैं, जिनकी कवरिंग क्या होती है? बहुत ही हार्ड होती है, उनको तोड़ने में हेल्प करती है. Next is strong, pointed and chisel shaped beak. Strong means hard, pointed means sharp from the at the end, and chisel shaped means chisel is a kind of tool which is used to give the shape to the wood. CHISEL, chisel shaped beak. This is a kind of tool used to give the shape to the wood. The strong pointed beak of woodpeckers work like a chisel. It helps them to drill into bark of the trees and pull out the insect to eat. This type of beak which is strong, hard, pointed means sharp at the end, and chisel shaped means with kind of tool used by the carpenter to give the shape to the woods, is present in the woodpeckers. Woodpecker is the name of the bird which is live in the trunk of the tree and drill and continuously drill the wood to get the insects to eat from the wood. ऐसी बीक किसके अंदर होती है और कैसी बीक? स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, पॉइंटेड मतलब आगे से नुकीली, तीखी, और चीजल शेप. चीजल एक टूल का नाम है, एक इंस्ट्रूमेंट जो कारपेंटर यूज़ करते हैं जिससे वो क्या करते हैं? लकड़ियों को शेप देते हैं. चीज़ल एक टूल जैसा होता है जो आगे से वी शेप जैसा एक टूल होता है. वैसी क्या होती है? बीक होती है. किसकी? एग्जाम्पल क्या है? वुड पैकर्स की. वुड पैकर ऐसे
बर्ड्स है जो क्या करते हैं, ट्री के ट्रंक में, ट्री की जो स्टेम होती है, जो एकदम हार्ड स्टेम होती है, उसमें रहते हैं और उसी में से क्या करते हैं, ड्रिल कंटिन्यू उसमें छेद करते हैं और क्या निकालते हैं, उसमें से इंसेक्ट्स निकालते हैं और खाते हैं। चीज़ल क्या करती है, चीज़ल मतलब इसलिए इसको चीज़ल शेप कहा है क्योंकि चीज़ल का काम भी क्या होता है, वुड को शेप देने का या वुड को काटने का। और इनकी जो चोंच होती है, जो बीक होती है, वो क्या करती है, वुड को कंटिन्यूसली काटने में उनमें छेद करती रहती है ताकि जो वुड्स के अंदर, जो लकड़ी या पेड़ों के अंदर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकाल के खा सके। You can see the picture of the woodpecker here. Next is short and broad beak. Short means small in length and broad means wide in area. Short मतलब छोटी और broad का मतलब क्या होता है, चौड़ी। Short and broad beaks are found in the swallow. Swallows fly in the air with their beaks wide open to catch flying insects. Swallow, SWALLOWS, swallow is the name of the bird. Swallow, this kind of beak is present in the swallow because swallow they catch their insect while flying. swallow एक ऐसी बर्ड है जिसके अंदर कैसी बिग पाई जाती है, शॉर्ट मतलब छोटी, यू कैन सी द इमेज, आप इमेज देख सकते हैं, छोटी, और ब्रॉड मतलब चौड़ी बिग पाई जाती है। ऐसी बिग इनके अंदर इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये क्या खाती है, इंसेक्ट्स खाती है और उन इंसेक्ट्स को कब पकड़ती है, जब वो हवा में उड़ रही होती है। उड़ते उड़ते वो क्या करती है, अपने शिकार या इंसेक्ट्स को, कीड़ों को पकड़ लेती है। चौड़ी होने की वजह से जो इंसेक्ट्स, जो कीड़े होते हैं, वो उनकी बीक में आसानी से फंस जाते हैं। नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड फ्लैट बिक्स। ब्रॉड मतलब चौड़ी, फ्लैट मीन्स चिपटी, they having the smooth surface. Ducks and swans which live near the ponds and the lakes look for insects and plants in muddy water. They scoop up mouthful of the water in their broad flat beaks. Comb-like structure along the edge of the beak filter the water out while trapping the food inside. Ducks and swan. This kind of beak is present in the ducks and swan which live near the water, near the pond, near the lakes. So when they are living near the lakes and the pond, so they eat the small fishes and they need to trap the fishes, so they have the broad beak and they have the comb-like structure. That means the tool which you use for the hair to make our hair, the comb-like structure at the edge of the beak which have to keep the fishes in their beak. नेक्स्ट बिक हमारी है ब्रॉड और फ्लैट। ब्रॉड का मतलब चौड़ी, फ्लैट का मतलब चिपटी। ऐसी बिक किसके अंदर पाई जाती है, डक्स मतलब बतख, और स्वान मतलब हंस, जो क्या करते हैं, पानी के आसपास रहते हैं, नदियों के और तालाबों के आसपास रहते हैं। ये क्या खाते हैं, छोटी छोटी फिट्स, जो मछलियाँ होती है, फिशेस होती है, वो खाते हैं। इनकी जो इनकी बीक है, जो फ्लैट और चौड़ी जो बीक है, वो क्या काम आती है, जैसे ही ये मछलियों को पकड़ते हैं, बहुत सारा पानी भी इनके साथ में मुंह में या बीक में आ जाता है। इनकी बीक के जो किनारे होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कंगे जैसे क्या होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या हेल्प करते हैं, उनकी बीक में से पानी को बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसे ही पानी उनके थ्रू बाहर निकलता है, फिशेस वगैरह उन कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के कारण उनके मुंह, बीक में ही फंस जाती है। नेक्स्ट इज ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड, लॉन्ग एंड शार्प एज beaks. ब्रॉड मतलब चौड़ी, लॉन्ग मीन्स लंबी, शार्प मीन्स पॉइंटेड, एज मीन्स किनारे। Pelicans have a long beak with a pouch. The pouch acts like a net, trapping fish while the water drains out. You can see the picture of pelican. Pelican is the name of the bird. Those having this kind of
beak, broad, long and sharp edge. They also live near the ponds and the lakes, so they need this kind of beak. They feed on the small fishes and the aquatic animals. So when they and also they have a pouch like structure, like a bag like structure near the neck. You can see near the neck they have a pouch like structure in which the fish and the other aquatic animals trap, and the water which comes along with the fishes drains out. ऐसी नेक्स्ट जो हमारी बीक है, ऐसी बीक किसके अंदर पाई जाती है? पेलिकन्स के अंदर। पेलिकन एक बर्ड का नाम है जो क्या करते हैं, नदियों और तालाबों के किनारे रहते हैं। इनकी बीक कैसी होती है? ब्रॉड मतलब चौड़ी, लॉन्ग मतलब लंबी, शार्प मतलब आगे से एकदम नुकीली और तीखी होती है। इनके आप देखेंगे नेक के यहाँ, गले के यहाँ आपको एक बैग लाइक, पाउच लाइक, पर्स लाइक, जैसे आपके मम्मा के पर्स होता है जिसमें सारा सामान रखते हैं, वैसे इनके गर्दन के पास आपको एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसके अंदर क्या होती है, जैसे ये पानी में से फ़िश वगैरह या एक्वेटिक एनिमल्स को पकड़ती है, वो फ़िश वगैरह कहाँ चली जाती है? पाउच में। वहाँ पे फ़िश क्या हो जाती है? फंस जाती है, और जो बाकी पानी जो मछलियों के साथ या इनके खाने के साथ आया होता है वो उनकी बीक के थ्रू वापस बाहर निकल जाता है। सो हियर वी कंप्लीट आवर लेक्चर एंड द होमवर्क टाइम। क्लास 3 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 एंड लेक्चर नंबर 2। PREY प्रे, प्रे मीन शिकार। सेकेंड इज़ ग्रूमिंग, ग्रूमिंग मीन्स संवरना और साफ सफाई करना खुद की। वेज शेप, थर्ड इज वेज शेप, अ टूल विच इज़ समथिंग लाइक वी शेप, ऐसा टूल जो किस शेप का होता है? वी शेप का। एंड अ चीजल, चीजल इज़ अ मेटल टूल विच विथ अ शार्प एज विथ अ फ्लैट एंड, मतलब चीजल एक टूल है जो कारपेंटर्स वगैरह के थ्रू यूज़ किया जाता है, जो एकदम, अगर आपने कभी कुल्हाड़ी देखी हो वैसी कुल्हाड़ी जैसा आगे से फ्लैट होता है। हुक्ड मीन्स हुक जैसा। Note: send your daily homework before 9 o'clock every day on this WhatsApp number 75668068077458। नोट डेली आपको अपना होमवर्क 9 बजे से पहले गुड हैंड राइटिंग में रफ नोटबुक में करके स्कूल के WhatsApp नंबर 7568077458 सेंड करना है। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।